Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to solve the chemistry assignment of alloys. So the first question is you have to find the phase and component and also degree of freedom. The main question is to find out the degree of freedom, and for the degree of freedom you have to also find the phase and component. So this is the chemical reaction it has given. So how many phase there are? So 1 2 3, because something is solid and CaO is also in solid form, CO2 is in gas form. So these three are different things in different phase. So there are three phase, and how many components? There is only two components. This is the main component from which you have derived the CaO and CO2. So two components. Okay. So what is the formula of degree of freedom? F is equal to C minus P plus 2. So the value of C is 2, P is minus 3 and plus 2 is on formula. So your degree of freedom is 1. Now for the next mixture of oxygen and nitrogen. So for mixture of oxygen and nitrogen you don't have to consider here two phase, you have to consider only one phase, because there is a mixture, so you don't it is maybe solid or liquid or otherwise gas, so you have to only consider one phase. Okay, now how many components are there? There are two components, one is oxygen and second one is nitrogen. So put the value and you get the degree of freedom is 3. Now NaCl in water, how many phase? There is one phase, because this is a solution. Okay, not a different thing. And for the composition there is two composition, because NaCl is a salt and water is your nothing but H2O. So degree of freedom C minus P plus 2, put the value and your degree of freedom is 3. Now for the PCl5 is equal to, so what it will give? So when you react with PCl5 will give you Cl5 plus Cl2. So you have to now balance over here. I will show you how you can do it. So for the PCl5, what is the phase and what is the your composition? We have to find out this. Okay friends, so over here for the PCl5, so this is PCl3, I am confusing over here. So this all are in the form of gases. Okay, so इसका फेज कितना होगा? इसका फेज होगा 1, क्योंकि सब गैसेस फॉर्म है. और इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? Component is nothing but component is equal to 2, because PCl5 will give you PCl3 plus Cl2. So what is the degree of freedom? The formula of degree of freedom C minus P plus 2. So what is the value of C2? Minus 1 plus 2, 2 to 4 minus 1. This is your degree of freedom, which is 3. Now let's move on to question number 3. So the question number 3. So what you have to do in question number 3? So there is given mass of alloy is 2 kg, and which is 2000 gram, which you convert. And what they have asked, did the alloy contain CD, this is cadmium and bismuth. So what is the amount of cadmium? It is 20%. So if you minus 100 minus 20, it will give you 80%. Now in 2000 gram alloy mass of cadmium, you have to first find out how much percentage is present that specific element. Okay, like CD cadmium is present 20%. Now what you have to do, 20 upon 100 into the total mass of that alloy, that is 2000 is given. Now if you calculate 2020 will be cancelled, and your answer is 400 gram of CD is present in 2000 gram. Now what you have to found at eutectic, the CD percent is given 50%. So how much will be the bismuth? Bismuth will be 50%. Now so suppose let 100 gram of eutectic contains 50 gram of CD. Okay, तो जो 100 ग्राम ऑफ यूटेक्टिक है वो कितना 50 ग्राम CD कंटेन कर रहा है. ठीक है, हमें पता चला कि अगर ये 100 ग्राम है तो ये 50%, इट मीन्स इट विल कंटेन 50 ग्राम. तो x ग्राम यूटेक्टिक में सो x ग्राम यूटेक्टिक कंटेन्स, मतलब कितना ग्राम यूटेक्टिक जो है वो 400 ग्राम कैडमियम को कंटेन करेगा. तो देखो अगर मेरे पास 50 ग्राम है, ठीक है, 100 जितना भी यूटेक्टिक होगा उसका आधा क्या है? अपना कैडमियम है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि
कितना ग्राम यूटेक्टिक, मास ऑफ यूटेक्टिक कितना होगा जब ये जो है 400 होगा। तो सिंपली यू हैव टू राइट लाइक दैट एंड सिंपली you have to calculate over here. I have calculated mass of eutectic is equal to 400 into 100 by 50, so it will give you 800 gram. So what you have to write over here, since mass of eutectic is 800 gram. Okay, now let's move for the question number 4. Question number 4 is similar. Mass of alloy is given. Mass alloy contain aluminium, sorry this is silver and PB. Okay, so यहाँ पे आपको सिर्फ 0.1 दे दो, दिस इज 99.99 हो जाएगा, इसको डिवाइड किया अपॉन 100 इंटू 1000 तो इट विल गिव यू 1 ग्राम. ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, यूटेक्टिक कितना, ये 2.6 कंटेन कर रहा है तो ये मैंने माइनस किया तो 97 है. फिर आपको क्या करना है, 100 ग्राम यूटेक्टिक 2.6 ग्राम कर रहा है तो x ग्राम में कितना है, x ग्राम में 1 ग्राम इतना कर रहा है तो x मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, तो मास ऑफ यूटेक्टिक फॉर्म इतना कितना 38.46. अभी हमें मास ऑफ पीबी निकालना है तो हमें टोटल मास ऑफ अलॉय से मास ऑफ यूटेक्टिक माइनस करना है. तो 1000 माइनस कितना करना है, 38.46. सो नाउ लेट बी यूज कैलकुलेटर. ओके, सो नाउ 1000 minus 38.46, so it will your 961.54 which is what gram ऑफ कितना पीबी का हम लोगों ने इसका मास निकाला. ठीक है, क्वेश्चन में पीबी का मास पूछा है. नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज सिमिलर. क्या बोला कि मास ऑफ अलॉय आपको दिए 1000. ठीक है, मास ऑफ अलॉय कितना है आपका 1000 1 kg, तो उसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया. अलॉय में क्या है, एसएन और पीडी, तो एसएन 60% है तो पीडी कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 40%. ठीक है, तो मास ऑफ पीडी इन 1000 ग्राम ऑफ अलॉय कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 1000, तो दिस इज 400 ग्राम. नाउ सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया, अभी क्या करना है हम लोगों को, यूटेक्टिक कंटेंट्स, यूटेक्टिक में कितना स्टैंशियम प्रेजेंट है ये हमें क्वेश्चन में दिया. सो व्हाट हियर ओवर आई राइट यूटेक्टिक, wait, okay, so eutectic क्या क्या कंटेंट्स कर रहा है आपका जो है एसएन और पीडी कंटेंट्स कर रहा है. कितना परसेंट कंसिडर कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया हम लोगों को, विच इज एसएन एंड सेकेंड वन इज पीडी. ओके, सो एसएन कितना परसेंट दिया हमें. Okay, so what is given over here, so I'll show you the question. तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें क्या दिया हम लोगों को, एस एन एंड पी डी यूटेक्टिक में कितना दिया हम लोग को 80% दिया. सो दिस इज योर नथिंग बट 80%. तो पी डी कितना हो जाएगा, दिस इज योर 20%. ओके, ये हम लोग को यूटेक्टिक का मास कंसिडर कर रहे हैं. नाउ अभी दिस इज डन. उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ फॉर द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर. तो देखो अभी इतना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो जो आपका 100 ग्राम है हम लोग अज्यूम करें कि जो 100 ग्राम अगर यूटेक्टिक होता, 100 ग्राम यूटेक्टिक कंटेंट्स, 100 ग्राम यूटेक्टिक कंटेंट्स कितना कंटेंट्स करता वो, जैसे कि मैं पीडी वाला कंसिडर करूँ ना, तो पीडी का मास कितना है तो 400 ग्राम. तो मैं क्या लिखूँगी, इट विल कंटेन, हम लोग पीडी को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, लेट मी सी ओवर है. तो पीडी को कंसिडर करें तो ये कितना 20%, राइट. तो 20 ग्राम, क्योंकि अगर 100 का 20% करोगे तो 20 ग्राम पीडी. ओके, सो लेट x ग्राम ऑफ यूटेक्टिक कंटेंट्स कितना ग्राम ऑफ पीडी कंटेन करेगा. हम लोगों ने पीछे निकाला था कि अगर 1000 ग्राम है, ओके, उसमें 400 मतलब 40% ये, तो ये 400 ग्राम आएगा. सो 400 ग्राम. आई होप यू अंडरस्टैंड कि 100 ग्राम में ये 20% है, राइट. ठीक है, तो मैंने इसको 20 ग्राम कर दिया. और x ग्राम में कितना रहेगा, जितना भी यूटेक्टिक आएगा उसमें अमाउंट कितना प्रेजेंट है हम लोगों ने पीछे निकाला, 400 ग्राम प्रेजेंट है. ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर. Okay, so now this is
400 ग्राम। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, मास ऑफ यूटेक्टिक फॉर्म। सो राइट ओवर हियर, मास ऑफ यूटेक्टिक फॉर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 400 अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी है। तो नाउ लेट्स जस्ट बी कैलकुलेट ओवर हियर, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है या, सो 100 इंटू 400 अपॉन 20। ठीक है, तो कितना आंसर आया, 2000 ग्राम। तो ये क्या है आपका 2000 ग्राम, क्या है हमारा टोटल, ओके सो हमारा टोटल जो मास ऑफ यूटेक्टिक वो कितना फॉर्म हुआ, वो 2000 फॉर्म हुआ, और जो हमारा एलॉय का मास था वो कितना था। So friends, now we are going to solve the question number 6, in which what you have to do. So let's just start to solve. This is the similar like the previous one, and for the question number 6 I have mismatched the previous value. Okay, so what I have do here, मैंने वैल्यू को बस एक्सचेंज किया, 80 to 60 कर दिया और 60 को 40 कर दिया है। ठीक है, और मैंने वैल्यू रखा तो ये 200 आया और इसको डिवाइड किया तो 500 ग्राम आया मास ऑफ यूटेक्टिक। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें किया क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूटेक्टिक। ओके या, सो नाउ इट इज़ विजिबल। तो मास ऑफ यूटेक्टिक इन 1 kg ऑफ एलॉय इफ़ द इलेक्ट्रिक यूटेक्टिक कंटेन 64% ऑफ टेन एंड एलॉय ऑफ टेन एंड लीड कंटेन 73%। ओके, सो हम लोगों को क्या दिया यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को मास ऑफ आपको अलॉय दिया है। तो ये कितना दिया आपको, मास ऑफ अलॉय जो है वो आपको 1000 ग्राम दिया है। ठीक है, 1 kg मीन्स होता है 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम, तो हम लोगों को क्या दिया है यहाँ पे, करना है नाउ, जो अपना हियर टिन है वो कितना दिया, 64% यूटेक्टिक में दिया, और अलॉय में कितना दिया हम लोगों को। सो अलॉय कंटेंट्स ऑफ, क्या क्या अलॉय कंटेन करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके अलॉय कंटेन करता है वो है टिन। ठीक है, टिन है, और जो सेकेंड नंबर पे है वो है आपका पैलेडीनियम। ठीक है, सबसे पहला टिन है एंड देन सेकेंड नंबर पे आपका पैलेडीनियम, और यू कैन से इट इज़ लेड। ठीक है, सो टिन कितना है आपका, टिन जो है वो आपका 73% है, और जो पीबी है वो कितना है 27% है। ठीक है, अभी इन 1000 ग्राम ऑफ अलॉय मास ऑफ पीबी कंटेंस, तो हमें क्या करना है, हम लोग जो है 100 माइनस 73 करेंगे तो 27% आएगा। सो नाउ इन 1000 ग्राम ऑफ अलॉय मास ऑफ पीबी कंटेंस, तो कितना मास पीबी कंटेंस करेगा, जो कि 27/100 इंटू 1000। तो इफ़ यू कैलकुलेट, अभी ये तो 27% आ गया। नाउ सो 1000 ग्राम अलॉय में मास ऑफ पीबी कंटेंट 27/100 इंटू 1000 करना है हम लोगों को, तो इट विल गिव 270 ग्राम। नाउ यूटेक्टिक कंटेंट्स, यूटेक्टिक कितना कंटेंट्स करेगा, टिन जो है उसने 64% किया है। ओके, और जो पीबी है वो 36% किया है। आई नो गाइस, मेरी जो एक्सप्लेनेशन की स्पीड है वो अभी ज़्यादा हो रही है, बिकॉज जब मैंने वीडियो सॉल्व किया तो इसका जो वॉइस था, इसके माइक में एरर आ गया, इसकी वजह से इसका पूरा वॉइस चला गया। सो नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन, सो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है एक्चुअली, मुझे देख के उसको एडिट करें टाइम ऑफ बोलने में। ओके, सो यूटेक्टिक कंटेंट्स कितना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आप लोग यू कैन सी ऑन द वीडियो। सो आपका टिन 64% है, तो आप 100 माइनस 64 करोगे तो विच इज़ नथिंग बट योर 36%। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ यूटेक्टिक कंटेंट्स 36 ग्राम ऑफ पीबी, लेट x ग्राम ऑफ यूटेक्टिक कंटेंट 270 ग्राम ऑफ पीबी। तो क्या बोला है मैंने यहाँ पे कि जो 100 ग्राम ऑफ यूटेक्टिक है वो कितना कंटेंट करता है, 36 ग्राम ऑफ पीबी, और x ग्राम ऑफ यूटेक्टिक इट मीन्स जो आपका हमें मास निकालना है वो x ग्राम है, और वो कितना है 270 ग्राम ऑफ पीबी। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, सो ना अभी यहाँ पे ब्लर हो गया थोड़ा,
सो सॉरी फॉर डैट। तो 270 ग्राम अपना पीबी है। नाउ मास ऑफ यूटेक्टिक इज 100 इंटू 270 अपॉन 36, और जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो विच विल गिव यू 750 ग्राम। ठीक है, अभी इसके आगे की वीडियो आप देख लो कि मैंने इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे मेरा वॉइस बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो चुका है, तो आई होप नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है द वीडियो, तो यहाँ पे सो नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। मास ऑफ अलॉय दिया है, इसको देख लो पूरा 1 kg ऑफ अलॉय दिया है। इफ द यूटेक्टिक सिस्टम कंटेन्स 40% ऑफ CD एंड अलॉय ऑफ CD एंड बिस्मथ कंटेंट 25% ऑफ CD, तो हम लोगों को क्या दिया, अलॉय में कितना है CD 25% और बिस्मथ में कितना 75। तो लेट्स फर्स्ट राइट मास ऑफ अलॉय दिया हम लोग को 1 kg विच इज़ नथिंग बट 1000 ग्राम। ठीक है, और 1000 ग्राम में आपको अलॉय कितना दिया है, 1000 ग्राम ऑफ अलॉय, अलॉय में CD जो आपका कैडमियम है वो है आपका 25% दिया है, तो 100 माइनस 25 विल गिव यू 75% ऑफ बिस्मथ। ओके, now this is 25%, this is 75%. अभी मास इन 1000 ग्राम ऑफ अलॉय, मास ऑफ CD इज 25 अपॉन 100 इंटू 1000 होगा विच इज इक्वल टू 250 ग्राम। ये कितना होगा मास ऑफ अलॉय इन CD। और यूटेक्टिक कंटेंस, यूटेक्टिक में क्या क्या कंटेंस किया गया, CD विच इज़ नथिंग बट 40% और बिस्मथ जो कि 60%। सो लेट 100 ग्राम ऑफ यूटेक्टिक कंटेंस 40 ग्राम ऑफ CD। मैंने आपको बोला कि मैं वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आगे बोल रही हूँ, एक्सप्लेनेशन का पार्ट अलग जा रहा है। ओके, और x ग्राम ऑफ यूटेक्टिक 250 ग्राम ऑफ कैडमियम। तो मास ऑफ यूटेक्टिक, मास कितना यूटेक्टिक का, सो यू कैन मल्टीप्लाई 100 इंटू 250 अपॉन 40, तो विच इज़ नथिंग बट 625 ग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग इसका जो पूरा डिटेल वाइज है वो आप लोग देख लो, और मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हम लोग क्या बोला है कि जो लिक्विड है H2O लिक्विड, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो H2O लिक्विड H2O गैस में कम जाएगा तो कंपोनेंट कितना होगा, कंपोनेंट आपका एक होगा क्योंकि दोनों चीज़ पानी, और फेज होगा 2 क्योंकि एक लिक्विड है और एक गैस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P+2, तो आपका F इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आप कोई भी एक चीज़ चेंज कर सकते हो, दो चीज़ कांस्टेंट रहेगी आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, दो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, H2 इन लिक्विड दिया, ये ऐसा दिया कि टेम्परेचर एक बीकर में सिर्फ लिक्विड दिया है। ठीक है, स्टीम वाटर, सॉरी नॉट स्टीम, नॉर्मल लिक्विड स्टेट में। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फेज 1 क्योंकि चीज़ एक ही और फेज भी लिक्विड है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, C माइनस P+2 विच इज इक्वल टू 2। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2, मतलब दो चीज़ आप चेंज कर सकते हो और एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नाउ दिस इज डन। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट बी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 9 हो गया है और 7 मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि यूजिंग द रिड्यूस्ड फेज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ अ फेज डायग्राम,
तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो लिक्विड वाटर है, ठीक है, देख सकते हो इक्विलिब्रियम विथ स्टीम और लिक्विड वाटर दिया है, तो मैंने इसके लिए वो कंडीशन यूज़ की थी। और थर्मोडाइनेमिक्स में स्टेट ऑफ वाटर सेकेंड वाले में बीकर में दिया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो लिक्विड और गैस दोनों दिया है, और सेकेंड वाले में बस हमें लिक्विड बोला है बीकर में, इसके लिए मैंने H2O लिक्विड यूज़ किया है। सेकेंड 10th क्वेश्चन है कि आपको रिड्यूस फेज का रूल एप्लीकेशन लिखना है, उसके डायग्राम और दो कंपोनेंट सिल्वर और लेड यूज़ होते हैं उसका वो ड्रॉ करना है। तो इसका जो आंसर है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी इजीली लिख पाए फटाफट।